کنٹرول روم سے آپ کو بتاتے ہیں جنگ مسلط کرنے کی کوشش کا فیصلہ کن جواب دیں گے۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر کی زیر صدارت خصوصی کور کمانڈرز کانفرنس میں بھارت کو دو ٹوک پیغام، کسی بھی جارحیت کے خلاف خود مختاری برقرار رکھنے کے عزم کا اعادہ۔ آرمی چیف نے کہا پاکستان کی مسلح افواج دفاع وطن کے لیے اپنی عوام کے ساتھ متحد ہو کر کھڑی ہیں۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر کی زیر صدارت خصوصی کور کمانڈرز کانفرنس۔ ISPR کے مطابق کانفرنس میں خطے کی موجودہ صورتحال کا جامع جائزہ لیا گیا، بالخصوص پاک بھارت کشیدگی اور علاقائی سلامتی کی صورتحال پر غور کیا گیا۔ کانفرنس نے پاکستان کی مسلح افواج کے کسی بھی جارحیت یا مہم جوئی کے خلاف ملک کی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کو برقرار رکھنے کے غیر متزلزل عزم کا اعادہ کیا۔ آرمی چیف نے مسلح افواج کی پیشہ وارانہ مہارت، ثابت قدم حوصلے اور آپریشنل تیاریوں کو سراہا۔ آرمی چیف نے کہا پاکستان کی مسلح افواج دفاع وطن کے لیے اپنی عوام کے ساتھ متحد ہو کر کھڑی ہیں۔ انہوں نے تمام محاذوں پر چوکنا رہنے اور فعال تیاریوں کی اہمیت پر زور دیا۔ کور کمانڈرز کانفرنس کے شرکاء نے مقبوضہ جموں و کشمیر میں بھارتی مظالم پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا بھارتی افواج لائن آف کنٹرول کے معصوم شہریوں کو مسلسل نشانہ بنا رہی ہیں۔ بھارتی فوج کی غیر انسانی اور بلا اشتعال کارروائیاں علاقائی کشیدگی کو بڑھاتی ہیں، جس کا مؤثر اور مناسب جواب دیا جائے گا۔ شرکاء نے کہا بھارت اپنی انتظامی ناکامی کو چھپانے کے لیے اندرونی مسائل کو ہمیشہ سے بیرونی رنگ دیتا رہا ہے۔ وہ یک طرفہ چالوں سے اسٹیٹس کو تبدیل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ پہلگام واقعے کا مقصد پاکستان کی توجہ مغربی سرحدوں اور اقتصادی بحالی کے لیے جاری کوششوں سے ہٹانا ہے۔ بھارت کو ان مذموم ہتھ کنڈوں کے ذریعے اپنی دہشت گرد پراکسیوں کو فعال کرنے میں ناکامی ہوگی۔ بھارت پہلگام واقعے کی آڑ میں سنتاس معاہدے کو نقصان پہنچا کر پاکستان کے قانونی اور بنیادی آبی حقوق کو غصب کرنے کے درپے ہے۔ بھارت کی جانب سے پانی کو بطور ہتھیار استعمال کرنا انتہائی خطرناک ہے۔ کور کمانڈرز نے پاکستان میں دہشت گردی کی سرگرمیوں کو منظم کرنے میں براہ راست بھارتی فوج اور انٹیلیجنس کے ملوث ہونے کے ناقابل تردید شواہد پر بھی گہری تشویش کا اظہار کیا۔ خالد محمود، ایکسپریس نیوز، اسلام آباد۔ بھارت کی کسی بھی جارحیت کے خلاف پاک فوج کی بھرپور جنگی مشقیں جاری، جدید ہتھیاروں اور ساز و سامان سے آپریشنل تیاری کا عملی مظاہرہ۔ مشقوں میں افسران اور جوانوں کی پیشہ ورانہ مہارت کی بھرپور جھلک۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق جنگی مشقوں کا مقصد دشمن کی کسی بھی جارحیت کا بھرپور جواب دینا ہے۔ پاکستان کا سنتاس معاہدے کی معطلی پر بھارت کو نوٹس دینے کا فیصلہ۔ ادھر وزیر اعظم سے مسلم ممالک کے سفراء کی ملاقاتیں۔ شہباز شریف کا کہنا ہے برادر ممالک بھارت سے خطے میں کشیدگی کم کرنے پر زور دیں۔ اپڈیٹ کریں آپ کو پاکستان کا سنتاس معاہدے کی معطلی پر بھارت کو نوٹس دینے کا فیصلہ۔ بھارت کی جانب سے سنتاس معاہدے کو معطل کرنے کا یک طرفہ فیصلہ۔ پاکستان کا باقاعدہ سفارتی ذرائع سے نوٹس جاری کرنے کا فیصلہ۔ وزارت خارجہ، وزارت آبی وسائل اور وزارت قانون نے مشاورت مکمل کر کے ابتدائی ہوم ورک کر لیا۔ پاکستان کی جانب سے نوٹس کے ذریعے بھارت سے معاہدے کی معطلی کی ٹھوس وجوہات طلب کی جائیں گی۔ پاکستان نے مسئلے کو عالمی سطح پر بھرپور انداز میں اٹھانے اور بھارت کی آبی جارحیت کو بے نقاب کرنے کی حکمت عملی بھی تیار کر لی۔ دوسری جانب وزیر اعظم شہباز شریف اور ڈپٹی وزیر اعظم اسحاق ڈار نے مختلف ممالک سے رابطے جاری رکھے۔ وزیر اعظم نے سعودی عرب، متحدہ عرب امارات اور کویت کے سفیروں سے الگ الگ ملاقات کی۔ ملاقاتوں میں خطے کی حالیہ صورتحال، پہلگام واقعے کے بعد کی پیش رفت پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ شہباز شریف نے واضح طور پر بھارت کے بے بنیاد الزامات کو مسترد کرتے ہوئے کہا پاکستان دہشت گردی کی تمام شکلوں کی مذمت کرتا ہے۔ بھارت کی طرف سے کشیدگی بڑھانے کی کوششیں ناقابل فہم ہیں۔ وزیر اعظم نے برادر ممالک پر زور دیا کہ وہ خطے میں امن و استحکام کے لیے بھارت پر اثر انداز ہوں۔ سعودی، اماراتی اور کویتی سفیروں نے پاکستان کے موقف کی حمایت کرتے ہوئے خطے میں امن و سلامتی کے لیے تعاون جاری رکھنے کے عزم کا اعادہ کیا۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے ڈنمارک اور پیناما کے وزرائے خارجہ سے ٹیلی فون پر گفتگو کی۔ انہوں نے بھارت کے اشتعال انگیز بیانیے اور سنتاس معاہدے کی خلاف ورزی سے آگاہ کرتے ہوئے پاکستان کا موقف پیش کیا۔ خالد محمود، ایکسپریس نیوز، اسلام آباد۔ فیل ہو یا اس کا کوئی ماما، ہم دیکھ لیں گے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف نے خبردار کر دیا، کہیں
उनकी जानिब से कहा गया, अभी ये नहीं कहूँगा कि खतरा टल गया है, मुआहिदे की खिलाफ वर्जी की गई तो पाकिस्तान स्ट्रक्चर पर हमला कर देगा। सिंध तास मुआहिदे की खिलाफ वर्जी आसान नहीं, ये पाकिस्तान के खिलाफ ऐलान जंग होगा। भारत ने पहलगाम वाक़े से मुतालिक कोई सबूत नहीं दिया। भारत ने फेस सेविंग के लिए कोई हरकत की तो उसके मुंह पर हम कालक मल देंगे। पाकिस्तान के मुकामी तौर पर तैयार किए गए ड्रोन शेपर्ड 3 में कौन सी ऐसी खसूसियात हैं जिससे दुश्मन ज़ेर होने से बच नहीं सकता, जानते हैं मोहम्मद उमैर से। पाकिस्तान की ड्रोन टेक्नोलॉजी ऐसी है कि दुश्मन भी काम जाए। ड्रोन शेपर्ड 3 जंगी मैदान में एक गेम चेंजर है जो दुश्मन के छक्के छुड़ा सकता है। मुकामी तौर पर तैयार किए गए ड्रोन शेपर्ड 2 असलहे के साथ 12 से 13 घंटे और बगैर असलहे के 20 घंटे तक परवाज कर सकता है। शेपर्ड 3 35,000 फुट की बुलंदी तक परवाज कर सकता है और 30 घंटे फजा में रह सकता है। शेपर्ड 3 एक बड़ा जहाज है जिसमें मुख्तलिफ नौयत के 8 हथियार ले जाने की सलाहियत है, जबकि बात की जाए शेपर्ड 2 की तो वो सिर्फ 4 हथियार लेकर जा सकता है। इस ड्रोन में दीगर खसूसियात की बात की जाए तो गोलियों, बॉम्ब्स और मिसाइलों समेत जदीद असलहा नस्ब किया जा सकता है। ये तमाम मौसमों में कारगर है, जबकि इसका कैमरा दिन और रात के औकात में भी देख सकता है। शेपर्ड 3 लेजर से टारगेट लॉक करने की खसूसियत का हामिल है। इसमें हदफ को निशाना बनाने का मौसर निज़ाम मौजूद है। ये पहले हदफ पर लेजर मारकर उसे लॉक कर लेता है। जब ये मिसाइल फायर करता है तो मिसाइल लेजर को फॉलो करते हुए बड़ी महारत से उस चीज को तबाह कर देता है। शेपर्ड 3 खुदकार निजाम के तहत किसी खतरे की सूरत में अपने स्टेशन पर वापस आ सकता है। इसकी रेंज 2500 किलोमीटर है। आप इसको खुद भी कंट्रोल कर सकते हैं। ये लाइव फीड भी दे रहा होता है। शेपर्ड 3 समंदरी, जमीनी और हर तरह के ऑपरेशन करने की सलाहियत रखता है। इसकी मदद से दुश्मन के किसी भी कम्युनिकेशन सिस्टम को जैम किया जा सकता है। पाक फौज के पास शेपर्ड 3, शेपर्ड 2 और बुराक ड्रोन के अलावा ऐसे ड्रोन्स और टेक्नोलॉजी है जिससे दुश्मन को नाको चने चबवाए जा सकते हैं। भारत बलोचिस्तान में दहशत गर्दी में मुलव्विस है। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, भारत ने पहलगाम वाक़े को अंदरूनी सियासत के लिए इस्तेमाल किया। भारत का दहशत गर्दी का ट्रैक रिकॉर्ड मौजूद है। पाक भारत कशीदगी कम करने के लिए UN के इजलास बुलाने की तजवीज़ को सराहते हैं। प्रोफेसर विक्टर गाओ की जानिब से भारतीय मीडिया को मुंह तोड़ जवाब। वाइस प्रेसिडेंट सेंटर फॉर चाइना एंड ग्लोबलाइजेशन प्रोफेसर विक्टर गाओ ने भारतीय एंकर को लाजवाब कर दिया। प्रोफेसर विक्टर का कहना है कि दहशतगर्द हमले पर इल्ज़ाम तराशी के बजाय गैर जानिबदाराना तहकीकात होनी चाहिए। मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ का कहना है, कौमी सलामती के लिए तमाम पार्लिमानी जमातों का एक ज़ुबान होना खुशाइंद है। पार्लियामेंटेरियंस के किरदार से कौमी यकजहती को फ़रोग मिलेगा। इरफान सदीकी से मुलाकात में गुफ्तगू करते हुए मुल्क के दिफा के लिए इख्तलाफात को एक तरफ रख देना अच्छी रिवायात है। मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ का कहना है, कौमी सलामती के लिए तमाम पार्लिमानी जमातों का एक ज़ुबान होना खुशाइंद है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का कहना है, वज़ीर आज़म पहलगाम वाक़े पर भारत को तहकीकात की पेशकश कर चुके। उम्मीद है भारत कोई मुहिम जुई नहीं करेगा। एक्सप्रेस फोरम में गुफ्तगू करते हुए बोली, भारत जानता है इस बार चाय के साथ बहुत से दूसरे लवाजमात भी तैयार हैं। उसको हमारी तैयारियों का बहुत अच्छे से पता है और उनको ये भी पता है कि हमारी चाय बहुत अच्छी होती है और हम जो है वो इस दफ़ा तो चाय के साथ पेस्ट्रियों का और बाकी चीज़ों का भी इंतज़ाम है। सो ये उनको पता है, इसलिए मेरा नहीं ख्याल कि कोई एडवेंचर जो है वो करेगा, बिकॉज़ ये एडवेंचर खित्ते के लिए जो है वो अच्छा साबित नहीं हो सकता और ये सबको पता है। बहुत सारे जो हमारी फ़ौरन जो हमारा ऑफिस है, पूरी दुनिया के जो हमारे सरबराहान ममलिकत हैं उन सबको कॉन्फ्रेंस पे लिया जा चुका है। उनको हमने अपना वर्जन दिया है और फिर जब प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान जो है वो इस पहलगाम के वाक़े के ऊपर जो है वो खुद तहकीकात के लिए शफाफ तहकीकात को ऑफ़र कर चुके हैं।
वेलकम बैक। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से नीदरलैंड्स की सफ़ीर हेनी डिवेरिस ने मुलाकात की। मुलाकात में पाकिस्तान और नीदरलैंड के दरमियान दो तरफा ताल्लुकात, तिजारत, सरमायाकारी, खेलों के फ़रोग और नौजवानों की फलाह बहबूद पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर आला पंजाब ने खेलों के जरिए अवामी रवाबित के क़याम को दोनों ममालिक के लिए अहम करार दिया। मरियम नवाज ने कहा, दोनों ममालिक के ताल्लुकात वक्त के साथ मज़ीद मजबूत और गहरे हुए हैं। उन्होंने बोवीलैंडर की लाहौर में नौजवान खिलाड़ियों के साथ मौजूदगी को हॉकी के लिए नेक शगुन करार दिया और कायनात बुखारी को पाकिस्तानी लड़कियों के लिए रोल मॉडल करार दिया। वज़ीर आला ने कहा, बतौर पहली खातून वज़ीर आला मेरी अव्वलीन तरजीह ख़वातीन की शमूलियत और क़यादत को फ़रोग़ देना है। इस साल नेशनल विमेंस सॉफ्ट बॉल चैंपियनशिप 28 मई से कराची में खेली जाएगी। इवेंट फ्लड लाइट्स में खेला जाएगा। फेडरेशन के नए लोगों की रुनुमाई पैट्रन रौनक लाखानी ने की। 5 रोज़ा इवेंट की मेज़बानी सिंध सॉफ्ट बॉल एसोसिएशन करेगी। सॉफ्ट बॉल अंपायरिंग कोर्स कराने और फेडरेशन के नए लोगों की मंजूरी भी दी गई। फेडरेशन की पैट्रन रौनक लाखानी ने कहा, पाकिस्तान में सॉफ्ट बॉल तेज़ी से मकबूलियत की मनाजिल तय कर रहा है। टाइटल स्पॉन्सर ईसा लेबॉर्ट्रीज की खेलों में सरपरस्ती को सराहते हैं और उन्होंने इस सिलसिले में कहा, स्पॉन्सरशिप के बगैर कोई भी खेल फ़रोग नहीं पा सकता। नौजवान खिलाड़ियों को खेल के मौके फ़राहम करना कौमी खिदमत है। डॉक्टर फरहान ईसा ने कहा, हमारा इदारा आइंदा भी सॉफ्ट बॉल फेडरेशन के साथ अपनी शराकतदारी जारी रखेगा। ख़वातीन खिलाड़ियों को एक मिसाली माहौल फ़राहम करना अव्वली तरजीह है। बदलते मौसम की बात करें तो पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में आज तूफ़ान की पेशगोई। महकमा मौसमियात के मुताबिक योब, मूसा खेल, बारखान, कोहलू, लोरालाई में शदीद बारिश और तूफ़ानी हवाएं चलने का इम्कान। डीजी खान, तोनसा, मुजफ्फरगढ़, कोट अद्दू और मुल्तान में भी तूफ़ानी हवाएं और बादल बरसने का इम्कान। गुजरांवाला, सियालकोट, नारोवाल और गिरदोनवाह में भी बारिश और तेज़ हवाएं चलने की तवक्को। भारतीय क़यादत बौखलाहट का शिकार, एक और हज़ीमत का सामना। भारतीय लेफ्टिनेंट जनरल DS राणा डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी के डायरेक्टर जनरल से फारिग कर दिए गए। लेफ्टिनेंट जनरल DS राणा को बरतरफी के बाद अंडमान एंड निकोबार अलमारूफ काला पानी भेज दिया गया। ज़राए के मुताबिक DS राणा के तबादले की बड़ी वजह पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन से जुड़ी रॉ दस्तावेज है। बांग्लादेश के साबिक फौजी अफसर रिटायर्ड मेजर जनरल ALM फजलुर रहमान ने कहा है कि अगर भारत ने पाकिस्तान पर हमला किया तो बांग्लादेश को चीन के साथ मिलकर भारत की 7 शुमाली मशरकी रियासतों पर कब्जा कर लेना चाहिए। भारतीय मीडिया के मुताबिक बांग्लादेश के साबिक मेजर जनरल ALM फजलुर रहमान ने अपने सोशल मीडिया पैगाम में लिखा, भारत ने पाकिस्तान पर हमला किया तो बांग्लादेश को इस मौके पर चीन के साथ बाकायदा फौजी इत्तेहाद की तरफ बढ़ना चाहिए और इस हवाले से फौरी बातचीत शुरू होनी चाहिए। उनका कहना था, भारत को सबक सिखाने का यही मौजू वक्त है जब वो खिते में अपने मुखालिफिन को दबाने की कोशिश कर रहा है। कंट्रोल रूम से अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए एक्सप्रेस न्यूज़ और रखिए हर खबर पर नजर।